Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Sandal College Boys Section Online Class Second Year. Dear students, Assalamu alaikum. Here is Akhtar Saeed, your English teacher, with another lecture on a very interesting and world famous novel, Goodbye Mr. Chips, that is for Intermediate Part 2. We will discuss chapter number 14 of the novel, that is on page number 33 onwards. Dear students, before embarking on the chapter number 14, I would like to tell you something about the author of the novel and the brief history of the novel, Goodbye Mr. Chips. Goodbye Mr. Chips has been written by James Hilton. James Hilton was an English novelist and journalist. He is best remembered for several bestsellers including Lost Horizon and Goodbye Mr. Chips. In 1938, he had moved to America and then he stayed there in America till his death and wrote Hollywood screenplays. He also won an Academy Award in 1942. Academy Award को ऑस्कर अवार्ड भी कहा जाता है और ये एंटरटेनमेंट की दुनिया का, फिल्मी दुनिया का सबसे बड़ा अवार्ड माना जाता है फॉर हिज वर्क ऑन द स्क्रीन प्ले ऑफ मिसिस मिनेवर बेस्ड ऑन द नॉवल बाय जैन स्ट्रदर. नाउ लेट्स डिस्कस द ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ द नॉवल. Goodbye Mr. Chips is a novella. Novella, dear students, एक शॉर्ट नॉवल को कहते हैं जो फुल लेंथ नॉवल की तरह नहीं होता. About the life of a school teacher, Mr. Chipping, and his long tenure at Brookfield School. Dear students, Brookfield School is a fictional minor British boys boarding school. Boarding school को residential school भी कहा जाता है, यानी अकामती इदारा. ऐसे इदारे जहां स्टूडेंट्स और स्टाफ उधर ही कैंपस पे रहते हैं उन्हें बोर्डिंग स्कूल या रेजिडेंशियल स्कूल कहा जाता है. लोकेटेड इन द फिक्शनल विलेज ऑफ ब्रूकफील्ड इन द फैनलैंड्स. Little Brown and Company USA first published Goodbye Mr. Chips in June 1934 and it attracted a lot of people across the world. Then it was also published by Hodder and Stoughton UK in October 1934. It is amazing that 15,000 copies were sold on the day of its publication. It has been adapted into 2 cinema films, 2 television presentations, radio and theatre as well. James Hilton portrayed his teacher William Henry Balgarnie as Mr. Chips. Mr. Balgarnie served at the Leys School, Cambridge. ये वो स्कूल है जहाँ जेम्स हिल्टन खुद पढ़ते थे और ये नावल उन्होंने अपने टीचर विलियम हेनरी बेलगार्नी को ट्रिब्यूट पेश करने के लिए लिखा. एक और मौका पर जेम्स हिल्टन ने कहा कि इस नावल की इंस्पिरेशन उनके अपने फादर की तरफ से भी आई जो खुद एक अच्छे इदारे के हेडमास्टर भी थे. Dear students, page number 33 of the novel Goodbye Mr. Chips. In the first paragraph of chapter number 14, we'll discuss here 2 questions. Number 1, what was the routine of Mr. Chips after rejoining Brookfield? Number 2, how did Mr. Chips feel after rejoining Brookfield? He still kept on his rooms with Mrs. Wickett. Indeed, he still lived there. हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि मिस्टर चैटविस की रिक्वेस्ट पर मिस्टर चिप्स ने ब्रुकफील्ड द्वारा ज्वाइन कर लिया था, लेकिन वो मिसिस विकेट के यहाँ ही रहते रहे, वहीं से ब्रुकफील्ड स्कूल आते थे. बट एवरी इवनिंग फ्रॉम हेयर दिस क्वेश्चन स्टार्ट्स, दैट इज़ व्हाट वाज द रूटीन ऑफ मिस्टर चिप्स आफ्टर रीजॉइनिंग ब्रुकफील्ड. Every morning about 10:30, he put on his coat and muffler and crossed the road to the school. He felt very fit and the actual work was not taxing. Taxing means tiring, demanding. उनका जो असल काम था वो बहुत ज़्यादा थका देने वाला नहीं था. जस्ट अ फ्यू फॉर्म्स इन लैटिन एंड रोमन हिस्ट्री. चंद एक क्लासें थीं जिन्हें वो लातीनी ज़ुबान और रोमन तारीख़ पढ़ाया करते थे. दी ओल्ड लेसन्स, वही पुराने सबक थे. इवन दी ओल्ड प्रोनंसिएशन, बल्कि वही पुराना तलफ़ुज़ भी. द सेम जोक अबाउट लेक्स कैनुलिया. देयर वॉज अ न्यू जनरेशन
that had not heard it. अब उनके सामने स्टूडेंट्स की एक नई जनरेशन थी, एक नई नस्ल थी जिन्होंने इस मजाक को पहले नहीं सुना हुआ था, यानी जिन्होंने लेक्स कैनुलिया के मजाक को नहीं सुना हुआ था. एंड ही, मिस्टर चिप्स, वॉज absurdly, foolishly gratified, pleased, satisfied by the success it achieved. और बड़े ही मज़हका खेज़ अंदाज से मिस्टर चिप्स बड़े ही पुरसुकून से नज़र आते थे. उन्हें खुशी होती थी कि जो इस मजाक यानी लेक्स कैनुलिया पे जो करते थे वो जो उन्होंने कामयाबी हासिल की थी. He, from here, question number 2 starts, that is, how did Mr. Chips feel after rejoining Brookfield? He felt a little like a music hall favorite returning to the boards. Boards means stage after a positively last appearance. वो अपने आप को उस म्यूज़िक हॉल फेवरेट की तरह महसूस कर रहे थे, उस फ़नकार की तरह महसूस कर रहे थे जो अपने आखिरी फ़न का मुजाहरा करने के बाद लोगों के इसरार पर स्टेज पर दोबारा आ गया हो. They all said how marvelous it was. Marvelous means excellent, that he knew every boy's name and faces so quickly. तमाम लड़के हैरान थे कि यह किस कदर शानदार बात है कि मिस्टर चिप्स को उन लड़कों के नाम और उनके चेहरे इतनी जल्दी याद हो जाते हैं. They did not guess how closely he had kept in touch from across the road. उनको बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था, यानी तालिबे इल्मों को बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि वो सड़क के पार रहते हुए किस कदर उनसे राब्ते में थे, किस कदर उनके साथ उनका एक रिलेशन डेवलप हो चुका था. He was a grand success. Grand here means glorious success altogether. उन्हें ज़बरदस्त कामयाबी नसीब हुई थी. In some strange way he did, and they all knew and felt it help things. और एक अजीब तरीके से उन्होंने चीज़ों को सुधारने में मदद की थी और वो सब ये जानते थे. For the first time in his life he felt necessary. ज़िंदगी में पहली दफ़ा उन्हें ज़रूरत का एहसास हुआ, and necessary to something that was nearest his heart. और वो उस चीज़ के लिए ज़रूरी थे, उस चीज़ के लिए ज़रूरत बन गए थे जो उनके दिल के बड़ी करीब थी. यानी अब वो ब्रुकफील्ड के लिए एक ज़रूरत बन गए थे जिसकी वजह से उन्हें दोबारा बुलाना पड़ा था और उनके लिए ये लम्हा, ये फीलिंग्स बहुत आला थी. There is no sublimer feeling. Sublimer, exalted feeling in the world, and it was his at last. इससे ज़्यादा आला और अरफा एहसासात नहीं हो सकते, जज्बात नहीं हो सकते और आखिरकार अब ये उन्हें नसीब हो चुके थे. डियर स्टूडेंट्स, यहाँ से लेकर जो मैंने डिफरेंट कलर में लिखा है, अभी जो पिछले स्लाइड में हमने क्वेश्चन पढ़ा था, क्वेश्चन नंबर 2, हाउ डिड मिस्टर चिप्स फील आफ्टर रीजॉइनिंग ब्रुकफील्ड, यहाँ से लेकर यहाँ तक इस क्वेश्चन का हिस्सा हो सकता है. And here, dear students, we'll discuss one question, that is, what kind of jokes did Mr. Chips make on rejoining Brookfield? He made new jokes too. उन्होंने कुछ नए लतीफ़े भी घड़े about the OTC. OTC stands for Officers Training Corps, अफसरों का वो तरबियती दस्ता जो ब्रुकफील्ड के पास तैनात था, एंड द फूड रेशनिंग सिस्टम, और खाने पीने की मकदार से मुतल्लक जो निज़ाम था उसके मुतल्लक लतीफ़े घड़े, एंड द एंटी एयर रेड ब्लाइंड्स. Blinds means curtains that had to be fitted on all the windows. और हवाई हमले की सूरत में खिड़कियों के ऊपर फिक्स किए गए, लगाए गए वो आहनी पर्दे, उनके मुतल्लक भी उन्होंने बड़े ज़बरदस्त किस्म के लतीफ़े घड़े. There was a mysterious here means strange kind of risol. Risol means meat bread that began to appear on the school menus on Mondays. और हर सोमवार को स्कूल मेन्यू में ये नया नज़र आने वाला ये एक रिसोल था, यानी ये गोश्त और अंडों से मिली जुली बनाई गई एक अजीब सी किस्म की रोटी थी, उसके मुताल्लिक भी इन्होंने मजाक घड़े. एंड चिप्स कॉल्ड इट एबोरेंडम, और मिस्टर चिप्स इन्हें इसको एबोरेंडम कहा करते थे, यानी इसका मतलब है मीट टू बी अबॉर्ड. अबॉर्ड मीन्स हेटेड, यानी ऐसा गोश्त जिससे नफ़रत की जाए, और ये जो मजाक था ये वहाँ बहुत ज़्यादा स्प्रेड हुआ. द स्टोरी वेंट राउंड, हर्ड चिप्स लास्ट लेटेस्ट. क्या आपने चिप्स का जो नया मजाक है उसके बारे में सुना है? बच्चे एक दूसरे से कहते फिरते.
Dear students, here we'll discuss two questions. Number one, when did Chatteris die and when did Mr. Chips become the acting head for the second time? Number two, why did Mr. Chips not want to become the permanent head of Brookfield? Chatteris fell ill. From here, question number one starts, that is, when did Chatteris die and when did Mr. Chips become the acting head for the second time? Chatteris fell ill during the winter of 1917 and again for the second time in his life, Chips became acting head of Brookfield. Then in April, Chatteris died. And the governors. From here, the governors say question number 2 start hoga, that is, why did Mr. Chips not want to become the permanent head of Brookfield? The governors asked Chips if he would carry on for the duration. Governors ने Mr. Chips से पूछा कि क्या वो इस अरसे में एक्टिंग हेड के तौर पे कंटिन्यू करना चाहेंगे, जारी रखना चाहेंगे. He said, Mr. Chips said he would if they would refrain, avoid, abstain from appointing him officially, formally, सरकारी तौर पर. मिस्टर चिप्स ने कहा वो जारी रखना चाहेंगे अगर गवर्नर्स उन्हें सरकारी तौर पर तैनात करने से गुरेज करें. From that last honor within his reach at last. अब वो आखिरी इज़्ज़त अफजाई जो आखिरकार अब उनके पास थी, उनको मिल सकती थी. He shrank means drew back, पीछे हट गए. Instinctively, naturally, automatically, feeling himself in so many ways unequal to it. Unequal, unfit, unable. अब वो आखिरी इज़्ज़त अफजाई जो आखिरकार उनको उनकी पहुंच में थी, उनकी रसाई में थी, वो ख़ुद को इस सीट के यानी इस हेडशिप के मुनासिब ना समझते हुए, उसके अहल ना समझते हुए ख़ुद ही पीछे हट गए. He said to Rivers was the chairman of board of governors. उनसे उन्होंने कहा, You see, I am not a young man. आपको पता है कि मैं एक जवान नहीं हूँ. एंड आई डोंट वॉन्ट पीपल टू एक्सपेक्ट अ लॉट फ्राम मी. और मैं नहीं चाहता कि लोग मुझसे बहुत ज़्यादा तवक्कुआत रखें. आई एम लाइक ऑल दीज न्यू कर्नल्स एंड मेजर्स यू सी एवरीवेयर. मैं इन तमाम मेजर्स और कर्नल्स की तरह हूँ जो जा बजा यहाँ नज़र आते हैं. जस्ट अ वॉर टाइम फ्लूक हेयर मीन्स चांस, स्ट्रोक ऑफ लक. ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे उनकी किस्मत जाग गई हो और मिस्टर चिप्स की भी किस्मत जाग गई है. अ रैंकर, दैट्स ऑल आई एम रियली. हकीकत में मैं भी एक फ़ौजी ही हूँ. Two questions may be discussed here. Number one, how did Mr. Chips perform his duties during his second headship? Number two, how did Mr. Chips read out the tragic list? 1917, 1918. From here, question number 1 starts, that is, how did Mr. Chips perform his duties during his second headship? 1917, 1918, चिप्स lived through it all. इस तमाम अरसे में चिप्स ब्रुकफील्ड में काम करते रहे. He sat in the headmaster's study every morning, handling, tackling problems, dealing with plaints means complaints and requests. वो हर सुबह हेडमास्टर के दफ्तर में बैठ जाते और मसाइल हल करते, उनके साथ साथ शिकायत और दरख्वास्तों को निपटाते. Out of vast experience had appeared a kindly, gentle confidence in himself. वसी तर तजुर्बे से उनके अंदर एक नरमी और फ़राख दिली से काम करने का इत्माद पैदा हो गया था. यहाँ तक इस क्वेश्चन का आंसर होगा. टू कीप अ सेंस ऑफ प्रपोर्शन, दैट वॉज द मेन थिंग. हुस्न तनासब को कायम रखना ही सबसे बड़ी बात थी. सो मच ऑफ द वर्ल्ड वॉज लूजिंग इट. दुनिया में इसकी कमी बहुत कम होती जा रही थी. एज वेल कीप it where it had or ought to have a congenial home. Congenial, pleasant home. यानी दुनिया को खुशगवार रखने के लिए, दुनिया को खुशगवार घर बनाने के लिए इसका कायम रखना यानी हुस्न तनासुब का कायम रखना ज़रूरी था. On Sundays, from here question number 2 starts, that is, how did Mr. Chips read out the tragic list? On Sundays in chapel, it was he, I mean Mr. Chips, who now read out the tragic list.
गिरजाघर में हर इतवार को मिस्टर चिप्स अब ब्रुकफील्ड के साबका तालिब इल्म जो जंग में मर जाते उनकी अफसोसनाक फहरिस्त को पढ़ा करते थे एंड समटाइम्स इट वाज सीन एंड हर्ड दैट ही वाज इन टीयर्स ओवर इट। और कभी कभार उनको देखा गया और सुना गया कि उसको पढ़ते हुए उनकी आंखों में आंसू आ जाते। वेल व्हाई नॉट, द स्कूल सेड। स्कूल के लोगों ने कहा ऐसा क्यों ना हो, ही वॉज एन ओल्ड मैन, वो एक बूढ़े आदमी थे। दे माइट हैव डिस्पाइज्ड हेटेड, नफरत करना, एनी वन एल्स फॉर द वीकनेस, अगर किसी और की तरफ से ये फहरिस्त पढ़ते हुए आंखों में आंसू आ जाते तो वो उनसे शदीद नफरत करते। Here we'll discuss one question, that is, what unusual thing did Mr. Chips do on one Sunday? One day he got a letter from Switzerland from friends there. एक दिन उन्हें स्विट्ज़रलैंड में कुछ दोस्तों की तरफ से एक ख़त मौसूल हुआ, heavily censored, कट, अमेंडेंट, जिसमें बहुत ज़्यादा कांट छांट की गई थी, बट कन्वेड सम न्यूज़, लेकिन उसमें से कुछ न कुछ खबर मिल ही गई। ऑन द फॉलोइंग संडे आफ्टर द नेम्स एंड बायोग्राफीज ऑफ ओल्ड बॉयज़ ही पॉज्ड अ मोमेंट एंड देन एडिड। अगले इतवार को साबका तालिब इल्म जो ब्रुकफील्ड के थे, जो जंग में मारे गए थे, उनके नाम और उनकी मुख्तसर सवाने उम्री के बाद वो एक लम्हे को रुके और फिर बोले, Those few of you who were here before the war, आप में से चंद एक लोग जो जंग से पहले यहाँ थे, विल रिमेंबर मैक्स स्टैफल, उन्हें मैक्स स्टैफल याद होगा, द जर्मन मास्टर। ही वॉज इन जर्मनी विजिटिंग होम व्हेन द वॉर ब्रोक आउट बिगैन, जब जंग शुरू हो गई तो वो जर्मनी में गए हुए थे अपने घर। ही वॉज पॉपुलर वाइल ही वॉज हेयर, जब वो यहाँ थे तो वो बहुत मकबूल थे, एंड मेड मैनी फ्रेंड्स। Those who knew him will be sorry to hear that he was killed last week on the Western Front. वो लोग जो उनको जानते थे उन्हें ये सुनकर अफसोस होगा कि पिछले हफ्ते वो मगरबी मुहाज पर मारे गए। Here we'll discuss one question. What was the reaction of the people when he read out the name of German master? He was a little pale. फेंट, वो पीले पड़ गए। व्हेन ही सैट डाउन आफ्टरवर्ड, जब वो उसके बाद बैठे। अवेयर नोइंग दैट ही हैड डन समथिंग अनयूजुअल स्ट्रेंज, इस बात का उन्हें एहसास हो गया कि उनसे कोई गैर मामूली बात सरजद हो गई है। ही हैड कंसल्टेड नोबडी अबाउट इट, उन्होंने इसके बारे में किसी से मशवरा नहीं किया था। एनी हाउ नो वन एल्स कुड बी ब्लेम्ड एक्यूज्ड, बहरहाल अब किसी को मुर्दे इल्ज़ाम भी नहीं ठहराया जा सकता था। लेटर आउटसाइड द चैपल ही हर्ड एन आर्गुमेंट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट, चिप्स सेड, चिप्स ने कहा मगरबी मुहाज पर। डज दैट मीन ही वॉज फाइटिंग फॉर द जर्मन्स, क्या इसका मतलब ये है कि वो जर्मनी के लिए लड़ रहे थे, जर्मनी की तरफ से लड़ रहे थे? आई सपोज इट डज, मेरा ख्याल है ऐसा ही है। सीम्स फनी humorous than to read his name out among all the others, दूसरों के नामों के साथ उसके नाम का पढ़ा जाना अजीब है, मज़ाहिया सा है। After all he was an enemy, आखिरकार वो हमारा दुश्मन था। Oh, just one of Chips's ideas, I expect the old boy still has them. Oh, ये तो चिप्स के ही ख्यालात में से एक ख्याल है और ये बूढ़ा लड़का अभी भी उन ख्यालात से चिमटा हुआ है। Now we'll discuss two questions here. Number one, what did Mr. Chips feel about the comments of people regarding German master? Number two, what was his opinion about the bayonet practice? From here, question number one starts, that is, what did Mr. Chips feel about the comments of people regarding German master? Chips, in his room again, was not displeased, unhappy by the comment. चिप्स जब अपने कमरे में आ गए तो लोगों के इस तबसरे पर खफा नहीं थे। येस, ही स्टिल हैड एम, हाँ वो अभी भी उन ख्यालात के साथ ही थे। दोज आइडियाज़ ऑफ डिग्निटी, डिसेंसी एंड जेनरोसिटी, और फराख दिली, लार्ज हार्टेडनेस, दैट वर बिकमिंग इंक्रीजिंगली ग्रेजुअली रेयर
रेयर मीन्स एक्सेप्शनल इन अ फ्रैंटिक वर्ल्ड, मैड वर्ल्ड, यानी वो वज़ेदारी और फ़राख दिली के तसव्वुरात जो इस पागल सी दुनिया में बहुत हद तक बतदरीज कम होते जा रहे थे। एंड ही थॉट ब्रुकफील्ड विल टेक दैम टू फ्रॉम मी, और उन्होंने सोचा ब्रुकफील्ड ये ख्यालात भी उनसे ही हासिल करेगा, बट इट वुडंट फ्रॉम एनीवन एल्स, और किसी और से हासिल नहीं करेगा। Once. From here, question number 2 starts, that is, what was his opinion about the bayonet practice? Once asked for his opinion of bayonet practice. Bayonet, gun with knife, sangeen. Practice, mashq, training, being carried on near the cricket pavilion. एक मर्तबा क्रिकेट पवेलियन के नज़दीक संगीन से लड़ाई की मशक जारी थी, तो उनसे इस बारे में राय पूछी गई, तो उन्होंने जवाब दिया, ही आंसर्ड विद दैट लेजी slightly little asthmatic intonation rise and fall in the pitch of sound that had been so often and so extravagantly extremely imitated कॉपीड। तो उन्होंने अपने वही मखसूस अस्थमे की वजह से, दमे की वजह से अपनी आवाज़ में उतार चढ़ाव के साथ वही सुस्त से अंदाज में, जिसकी अब बहुत ज़्यादा नकल उतारी जाने लगी थी, जवाब दिया, इट सीम्स टू मी अ वेरी वल्गर चीप वे ऑफ किलिंग पीपल, कि लोगों को मारने का ये बड़ा ही एक गवार सा तरीका है, ये बड़ा ही एक उजड़ सा तरीका है। Dear students, in the last paragraph of chapter number 4 of Goodbye Mr. Chips, we'll discuss one question: why was Mr. Chips called pre-war? The yarn means story was passed on and joyously, cheerfully appreciated, praised, admired, और ये कहानी भी फैल गई और लोग इससे बहुत ज़्यादा महजूज हुए, लुत्फ़अंदोज़ हुए। How Chips had told some big brass hat officer from the war office that bayonet fighting was vulgar indecent, कि मिस्टर चिप्स ने किस तरह से दफ्तर जंग से आए हुए एक बड़े फौजी अफसर से कहा कि संगीन से लड़ना बड़ा ही एक उजड़ और गंवार सा तरीका है। जस्ट लाइक चिप्स, ये बिल्कुल चिप्स का ही खासा है। एंड दे फाउंड एन एडजेक्टिव फ्रॉम हिम, और उन्होंने उसके लिए यानी मिस्टर चिप्स के लिए एक सिफाती नाम ढूंढ लिया। एन एडजेक्टिव जस्ट बिगिनिंग टू बी यूज्ड, एक ऐसा सिफाती नाम, एक ऐसी सिफत जो अभी अभी उनके लिए इस्तेमाल होना शुरू हुई थी। वो क्या थी? ही वॉज प्री वॉर, कि मिस्टर चिप्स जो हैं वो जंग से पहले की मखलूक हैं। That's all of today's lecture, dear students. I hope you might have understood all the questions and their answers along with synonyms. If you have any question, dear students, if you have any problem, you may comment in the comment section below. I'll inshallah be there to answer your questions. Till some next lecture, take a very good care of yourself and your dear ones. Thank you very much.